So the age of John Milton, we were discussing, and from where we discontinued, and now we are going to discontinue from that point. This is by the name session 21. Okay, 1600 to 1660, the end of the great age of Queen Elizabeth. And we have just discussed what is the end of Queen Elizabeth. Remember, this is called the age of Renaissance, and in which Queen Elizabeth in England, Queen Elizabeth was ruling, and her age was considered one of the greatest ages in English, in the history of English literature, and it was from drama point of view. From drama point of view, probably the best age. And what kind of drama was there that time? That time poetic dramas were at their height. Shakespeare, Marlowe, and great other writers were writing. In prose, you will find Bacon. Sir Francis Bacon was there. So these all great, writers were working, and they were playing their role in promoting English language as well. She died in 1603, and when she died, so it is said that the glorious age, glorious period, and that Renaissance almost came to an end. Milton was born in 1608. Now, with her death, the great age of the Renaissance came to an end. कहा जाता है कि उनकी डेथ के साथ ही जो ये अजीम एज था रेनेसा का दौर जो था ये खत्म हुआ. Revival of the spirit of the Renaissance. It is said that with Milton, the spirit of Renaissance was revived. Milton lived in particularly strange times, and his intelligence and imagination were considerably influenced by conflicting principles in politics and religion and in social life. मतलब उसकी उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, असर था मिल्टन के ऊपर, वो पॉलिटिक्स का था, रिलीजन का था, और सोशल लाइफ, इन तमाम चीज़ों का उसकी पर्सनैलिटी में आपको असर मिलेगा. Because that time religion, social life, and all political life, they all were different. The Renaissance and the spirit of reformation, इन दोनों का असर आपको मिल्टन की शख्सियत पर मिलेगा. The Renaissance brought with it an increased interest in Greek and Latin literature, or Milton had interest in Greek and Latin literature, in art and the beautiful, the bright and the joyous in life. जबकि जो रिफॉर्मेशन का जो था, so here you will find that out he viewed life from a different perspective. As I told you, James the First was ruling that time. ये वो दौर था जब जेम्स द फर्स्ट जो था वो रूल कर रहा था. एंड जेम्स द फर्स्ट सक्सीडेड आफ्टर एलिजाबेथ. एलिजाबेथ के इंतकाल के बाद, उसकी डेथ के बाद, जेम्स द फर्स्ट जो था वो बादशाह बना. बट ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ प्लेजर. इसके बारे में कहा जाता था कि वो अयाश टाइप का बादशाह था, किंग था. ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ प्लेजर. उसे प्लेजर चाहिए था. Now you know pleasure can be attained by different means, like by having, by drinking wine, or by having, girls around you, and by different other means. So he was a great lover of pleasure. The bonds of religion and morality became loose. Due to this, what happened? इसकी वजह से हुआ क्या कि जो religious का एक जो religious bond था, या उसे हम क्या कहते हैं, जो religious strictness थी, वो और morality जो थी, दोनों बहुत ज़्यादा लूज हो गई थी. मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि जब मुल्क का बादशाह या वजीर आजम जो है वो अयाश टाइप का होगा, तो वो क्या करेगा? वो यही चाहेगा कि मुल्क में इस तरह की चीज़ें आम हो जाए. जैसे हम शराब की मिसाल ले लेते हैं, ये आम हो जाए, शबाब आम हो जाए, और दीगर चीज़ें आम हो जाए. जिसको खुद परवाह नहीं होगी, तो ज़ाहिर है वो क्या करेगा? जब घर का सरबराह सही नहीं होगा, तो पूरा घर ही ख़राब होगा. सो व्हाट हैपेंड, द यू नो
the bonds of religion and morality became loose. Dance, music, wine, and women. These things became common in the court. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? These things became common in the court. Court here means अदालत नहीं. Court here means जो क्या कहते हैं बादशाहों के यहाँ जो होता है वो so it means that court. Then due to all these things what happened? Puritans emerged. ये इन तमाम चीज़ों से क्या हुआ कि जो कोर्ट में अच्छे अच्छे लोग थे, those who were pure and those who were away from such bad things, they started separating themselves from the court. उन्होंने क्या किया? अपने अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर दिया कोर्ट से और अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर दिया लोगों से. एंड दिस इज हाउ दे इमर्ज. इस तरह से क्या हुआ? रिफॉर्मेशन की तहरीक शुरू हो गई एंड प्यूरिटन्स इमर्ज. इनका वजूद ये वजूद में आई. You will find political and religious tyranny. Political and religious tyranny. सियासी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी जुल्म शुरू हुआ लोगों पर. Political victimization and religious tyranny was also very common. Now, if you have any question regarding these points, you can ask me. मैं चाहूँगा कि आप 2-3 मिनट इस पर दें, सोचें इसके हवाले से. अगर किसी को इस पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें. डोंट आस्क मी क्वेश्चन डायरेक्टली, जस्ट थिंक फॉर अ वाइल. टेक 2 minutes. Excuse me, sir. Hello, sir. Yes, no problem at all. Hello, sir. Excuse me. Yes. सर ये इमरजेंस ऑफ पेरिटेंस ये समझ में नहीं आया वो ये क्या है? इमरजेंस ऑफ प्यूरिटन्स का वजूद, प्यूरिटन्स इमर्ज करने लगे. प्यूरिटन्स जो थे, जो प्यूरिटन्स ये किस्म की सोच रखने वाले लोग थे जो कि उस वक्त जो हालात चल रहे थे, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आफ्टर द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ के बारे में मैंने बताया कि इट वाज द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वाज मार्क्ड बाय यूनिटी एंड वाइल द सक्सीडिंग एज वाज द टाइम ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स. यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ का जो एज था उसमें लोग यूनाइटेड थे, सब एक थे, ये एक थे, सब यूनिटी थी उनमें. लेकिन बाद में जब जेम्स फर्स्ट की हुकूमत आई या ये इसकी बारी इनका वक्त आया तो क्या हुआ? देयर वाज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, देयर वर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टर्मोइल. यानी कि सियासी और मजहबी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए. क्वीन ने जो किया था, शी वर्क थ्रू आउट फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश नेशन. क्वीन का जो था उसने थ्रू आउट यानी कि अपनी सारी ज़िंदगी जो है ब्रिटिश नेशन एंड द पीपल ऑफ ब्रिटिश नेशन के प्रॉस्पेरिटी और ग्लोरी के लिए उसने काम किया था. यानी कि उनकी खुशहाली के लिए और उनकी अजमत के लिए उन्होंने काम किया था. एंड द पीपल वर यूनाइटेड इन देयर एब्सोल्यूट लॉयल्टी. और लोग भी उनकी मतलब ये कि दौर में यूनाइटेड थे. दे वर यूनाइटेड.
एंड देयर वाज अ मोड ऑफ एलिशन एवरीवेयर, और सब लोग जो थे बहुत खुश थे। कहा जाता है कि इंग्लैंड बिकेम अ मैरी और सिंगिंग गार्डन ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, और ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब जेम्स जब फर्स्ट आया तो क्या हुआ, ही वॉज अ लवर ऑफ प्लेजर, मैं आपको बता चुका हूँ, एंड बॉन्ड्स ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी बिकेम लूज, और बहुत मतलब ये कि मोरालिटी और इन चीज़ें ये चीज़ें बहुत लूज कर गई थी। वाई? बिकॉज डांस, म्यूजिक, वाइन, वुमेन, ये चीज़ें आम हो गई थी। एंड कहा जाता है कि इट वाज लिटरली अ ड्रंकन कोर्ट। कहा जाता था कि वो जो कोर्ट था उसका जो उस वक्त था वो एक ड्रंकन कोर्ट कहा जाता था, कि अक्सर वहाँ पे शराब वगैरह चलती थी। मिल्टन हैज allegorically रिप्रेजेंटेड दिस कोर्ट लाइफ इन कॉमर्स, उसने अपने वर्क कॉमर्स में इसको allegorically रिप्रेजेंट भी किया है। सो फ्रॉम द डिफाइलमेंट ऑफ दिस कोर्ट द सोबर पार्ट ऑफ द नोबेलिटी विड्रू। इसी कोर्ट में से जो बादशाह के अपने ये जो कोर्ट था इसमें से जो नोबल लोग थे, जो अच्छे अच्छे लोग थे, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, अपने आप को बादशाह से अलग करना शुरू कर दिया, वो छोड़ छोड़ के जाने लगे। और लेटर ऑन दीज पीपल बिकेम रिफॉर्मिस्ट, और इन्होंने रिफॉर्मेशन शुरू कर दी, एक तहरीक चलानी शुरू कर दी जिसको कहा जाता है रिफॉर्मेशन। और इसी रिफॉर्मेशन से फिर एक ग्रुप निकला जिसको कहा जाता है दे स्टार्टेड लीडिंग प्योर एंड ऑस्टियर लाइफ, और इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, प्योर लाइफ गुजारना शुरू कर दी, यानी कि शराब नोशी, बुराई और तो इन सब चीज़ से अपने आप को बचाकर एक ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। एंड लेटर ऑन सच पीपल कॉल्ड प्योरिटन्स, और इनका इमर्जेंस शुरू हो गया और ये इमर्ज करने लगे। आर यू गेटिंग मी? और इस तरह के लोग सामने आने लगे। सो दिस इज कॉल्ड द इमर्जेंस ऑफ प्योरिटन्स। मैंने आपसे कहा ना कि हर हुकूमत में या हर पार्टी में, हाँ रिलीजियस या पॉलिटिकल, अच्छे लोग भी होते हैं जो कि हक की बात करते हैं और बुराई के खिलाफ बात करते हैं और हक की बात करते हैं, खास से उनका जो है वज़ीर आज़म जो है या उनका जो बादशाह है वो नाराज़ ही क्यों ना हो जाए, वो लोग हक की बात करते हैं। तो इस तरह यहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से अलग होने लगे, और बाद में उन्होंने अपना एक तर्ज अमल इख्तियार किया, एंड सच पर लेटर ऑन कॉल्ड प्यूरिटन्स। यस, एनी क्वेश्चन? इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ व्हाट हैपेंड to the dissoluteness or this immoral activities of the court was very political and religious tyranny। पॉलिटिकल और रिलीजियस टिरनी भी फिर शुरू हो गई, यानी कि टिरनी कहते हैं जुल्म और बर्बरियत को, सियासी और मजहबी तौर पर जुल्म शुरू कर दिया। चार्ल्स द फर्स्ट रूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट पार्लियामेंट। इसके बाद जो है जेम्स द फर्स्ट के बाद जो है जेम्स द फर्स्ट जो था वो 1625 तक रहा। उसके बाद चार्ल्स द फर्स्ट की डेथ के बाद चार्ल्स द फर्स्ट आया और उसने और ज़्यादा मसाइल शुरू कर दिए। ही रूल फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट अ पार्लियामेंट, और बगैर पार्लियामेंट के चार्ल्स द फर्स्ट जो था उसने रूल किया बगैर किसी पार्लियामेंट के एक लंबे अरसे तक। बट हिज वर्स, अच्छा उसका सबसे खतरनाक जो क्राइम था या जो काम था वो क्या था? हिज वर्स्ट क्राइम वाज दैट ही ट्राइड टू फोर्स द कॉन्शियस ऑफ द पीपल बाय डिमांडिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये एक हद हो गई थी, यानी कि हर चीज़ की एक हद होती है ना, तो ये एक हद हो गई थी कि जब उसने ये कहना शुरू कर दिया, भाई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ द टाइप ऑफ वर्शिप, इसका कह रहे जो पेस्टर ऑफ इंग्लैंड जो जिस किस्म की इबादत कहेगा इसी तरह की इबादत आपने करनी होगी। आर यू गेटिंग मी? मतलब उसने मजहब के मामलात में इस कदर मतलब ये इंटरफेरेंस शुरू कर दी, उसने कहा जो इबादत ये बता रहे हैं वो करनी होगी, बाकी सब छोड़ दो। So Charles the First ruled for a long period without parliament, but his worst crime was that he tried to force the conscience of the people. लोगों को force करना शुरू कर दिया by demanding universal acceptance of the type of worship prescribed by the chief pastor of England, Archbishop Laud, कि जो इबादत ये बता रहे हैं इस ये आपने करनी हो, बाकी नहीं करनी है। यानी कि यहाँ तक वो बात चली गई थी, यानी कि अपनी मर्जी का मजहब लाना चाह रहे थे। Then Charles tried to impose this type of worship on the Church of Scotland। पर उसने क्या किया, इस तरह की जो वर्शिप थी उसको चर्च ऑफ स्कॉटलैंड पर इम्पोज करने की कोशिश की। एंड दिस कॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल द स्कॉटिश पीपल टू रेज इन रिवोल्ट, और इससे क्या हुआ, जो भी जितने भी स्कॉटिश पीपल थे वो सब बगावत पर उतर आए। टू ब्रिंग देम इनटू सब्जेक्शन, और फिर चार्ल्स द फर्स्ट ने क्या किया, उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया, उसको एक आर्मी की जरूरत पड़ी। और उस पर उसने क्या किया, पार्लियामेंट को समन किया, यानी कि पार्लियामेंट को 1640 में फिर उसने कॉल किया। पार्लियामेंट तो थी नहीं, लेकिन उसने फिर बनवाई और कॉल किया, नई पार्लियामेंट बनाई। सो द न्यू पार्लियामेंट
जो नई पार्लियामेंट बनी टुक मास्टरी ऑफ द होल सिचुएशन, तो उसने उस पूरे सिचुएशन पर फिर कंट्रोल करने की कोशिश की। इट कंपेल्ड द किंग टू एक्सेप्ट एन एक्ट ऑफ टेंडर। जब वो पार्लियामेंट बनी, अब किंग फंस गया खुद ही पार्लियामेंट के उस पर, तो उसने क्या किया कि पार्लियामेंट ने किंग को कंपेल किया, मजबूर किया कि वो एक्ट ऑफ अटेंडर अगेंस्ट हिज मिनिस्टर्स जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फाइनली जो है किंगशिप जो है वो खतरे में पड़ गई। 1642 में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, राइज ऑफ रिवॉल्ट। एज आई टोल्ड यू, स्कॉटिश जितने भी थे सब वो रिवॉल्ट शुरू कर दिया कि भाई किस किस्म की इबादत हमसे करवाना चाह रहा है, ही इज यू नो इंटरफेयरिंग विद आवर रिलीजियस यू नो वर्शिप। एंड देन 1642 सिविल वॉर स्टार्टेड। फिर उसके बाद जो है there was open confrontation between parliament and the royalists in 1642, the civil war started। जो उसने पार्लियामेंट खुद बनाई थी, अब वो उससे खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा नहीं, आप जो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उनका और रॉयलिस्ट जो था उनके दरमियान ओपन कन्फ्रंटेशन होगी, यानी वो आपस में ओपनली उलझने लगे। और 1642 में फिर सिविल वॉर। सिविल वॉर किसे कहते हैं? सिविल वॉर हरियर खाना जंगी सर। खाना जंगी क्या होता है? अवाम आपस में लड़ते हैं। बस सिविल वॉर ये होती है कि दो ग्रुप होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, मुल्क में किसी किस्म की कोई हुकूमत सामने नज़र नहीं आ रही होती है, हर जो चाह रहा है अपना, जो भी चाह रहा है अपना कर रहा है, हुकूमत की रिट को कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा। सो इट इज़ अ वेरी टेरेबल कंडीशन। तो सिविल वॉर शुरू हो गई व्हेन पीपल डू नॉट हैव देयर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, सो सिविल वॉर बिगिंस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि द बैलेंस ऑफ सक्सेस एट फर्स्ट, शुरू में तो जो पावर थी वो किंग के पास थी, लेकिन अचानक वो पावर तब्दील हो गई और फिर ओलिवर क्रॉमवेल टुक कमांड ऑफ द पार्लियामेंट्री फोर्सेस। फिर क्या हुआ, ओलिवर क्रॉमवेल जो था उसके पास पावर आ गई एंड ही टुक कमांड ऑफ द पार्लियामेंट्री फोर्सेस। और जो पार्लियामेंट था जहाँ पे कानून पास किए जाते थे उसकी जो कमांड थी वो किसके पास आ गई? ओलिवर क्रॉमवेल, एंड ही वाज अ प्यूरिटन। ओलिवर क्रॉमवेल वाज अ प्यूरिटन। तो उसके पास ये आगे कमांड आएगी। जब उसके पास कमांड आएगी तो क्या, द रॉयलिस्ट वर क्रश। तो जो रॉयल फैमिली थी, शाही खानदान था, उनको क्रश कर दिया गया, खत्म कर दी गया। इन 1645 किंग चार्ल्स द फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड, और किंग चार्ल्स द फर्स्ट जो था उसको कत्ल कर दिया गया 1649 में। एंड ग्रेट ब्रिटेन बिकेम अ रिपब्लिक, और फिर ग्रेट ब्रिटेन जो था पहली मरतबा क्या बना, रिपब्लिक बना। एंड क्रॉमवेल बिकेम अ सॉर्ट ऑफ डिक्टेटर। क्रॉमवेल जो था एक किस्म का डिक्टेटर बन गया, बादशाह नहीं बना बल्कि एक किस्म का डिक्टेटर बन गया। लेकिन कहा जाता है व्हाट इट इज सेड अबाउट क्रॉमवेल दैट हिज रिज्यूम वाज नॉट पॉपुलर। उसकी जो हुकूमत थी उतनी पॉपुलर नहीं थी। एंड व्हेन ही डाइड द पीपल इनवाइटेड द सन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट टू बिकम किंग एज चार्ल्स टू। तो जब उसकी हुकूमत, जब उसका इंतकाल हुआ, उसकी डेथ हुई, तो लोगों ने उस बादशाह के बेटे को बुलाया और कहा कि भाई आप आके मुल्क को संभालें और हमारे बादशाह बन जाएं। सो हिज क्रॉमवेल्स रिजीम वाज नॉट पॉपुलर। उसकी पॉपुलर रिजीम होने की क्या वजह थी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। अब जब किंग चार्ल्स द सेकंड आया, यानी कि चार्ल्स द सेकंड मींस ही वाज द सन ऑफ किंग चार्ल्स द फर्स्ट, व्हेन ही केम टू द थ्रोन, सो व्हाट हैपेंड, दोबारा से वही अयाशियाँ बल्कि पहले से ज़्यादा शुरू हो गया। रेस्टोरेशन ऑफ किंगशिप, बादशाह बरकरार हो गई, बहाल हो गई। करप्शन अगेन स्टार्ट, वो जो पहले करप्शन था अब दोबारा शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है? करप्शन अगेन स्टार्टेड and this opened the floodgates of corruption on the court of London. Milton had no place in the atmosphere. Milton के पास, बेचारे के पास वो फंस गया, and he tried to borrow of the muses to write his Paradise Lost, and as I told you, due to his connections he survived. तो ये एक स्टोरी थी उस हवाले से अबाउट द एज। अब अगर हम बात करते हैं, फिर टॉक अबाउट लिटरेचर इन द एज ऑफ मिल्टन, अगर हम बात करते हैं कि उस दौर में लिटरेचर क्या 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 हाल था, सो देयर वाज ड्रामा। इफ यू टॉक अबाउट ड्रामा, अगर हम बात करते हैं ड्रामा की लिटरेरी फॉर्म, ड्रामा, सो देयर वाज ऑन द होल अ डिक्लाइन ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी इन दिस एज। यानी कि ये जो एज था, ये जो दौर था, इसमें प्यूरिटन्स वर डोमिनेटिंग, सो देयर वाज अ कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी इन दिस एज।
एक किस्म का जवाल था लिटरेरी एक्टिविटी पे। पार्टली इट वाज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटन्स, कुछ हद तक कहा जाता है कि प्यूरिटन्स का इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से ये हुआ। द प्यूरिटन्स वर नोबल गॉड फीयरिंग पर्सन बट दे वर वेरी हॉस्टाइल टू साइंस आर्ट एंड द सेंस ऑफ ब्यूटी। प्यूरिटन्स के बारे में कहा जाता है कि दे वर नोबल, वो लोग शरीफ लोग थे, गॉड फीयरिंग थे, खौफ खुदा उनमें था, बट दे वर हॉस्टाइल टू साइंस, लेकिन वो साइंस, आर्ट और सेंस ऑफ ब्यूटी की तरह के हवाले से काफ़ी हॉस्टाइल थे, यानी कि वो अग्रेसिव टाइप के थे, इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे। दे वांटेड टू टर्न मैरी इंग्लैंड इनटू अ बैंड ऑफ साम सिंगिंग मैन एंड वुमेन, और वो इंग्लैंड को एक किस्म का मतलब ये कि चाहते थे कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिंग्स रिलेटेड टू गॉड एंड थिंग्स रिलेटेड टू हीरोज एंड इस तरह की चीज़ें हों। इन दिस प्रोसेस देयर वाज अ कंप्लीट डिक्लाइन, और इस तरह से क्या हुआ कि डिक्लाइन शुरू हो गया। ड्रामा जो था उसमें कहा जाता है कि देयर वाज अ वर्चुअल कोलैप्स ऑफ ड्रामा इन दिस एज, ड्रामे का कोलैप्स हो गया। They closed the theaters in 1642. All dramatic activity came to an end. Dramatic activity जो थी वो खत्म हो गई। The Puritans was against this form of entertainment. वो लोग इस फॉर्म के खिलाफ थे, यानी कि ड्रामे की जो ड्रामे के खिलाफ थे और कहते थे कि दिस इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। फिर उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट प्रोस, सो वी फाइंड हियर दैट देयर वाज अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट इन द राइटिंग ऑफ प्रोस। प्रोस में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आई, improvement in the writing of prose. Good sermons were delivered in written. अच्छे अच्छे जो sermons थे वो दिए जाने लगे और उनको लिखा जाने लगा। There was an abundance of pamphlets. बहुत बड़ी तादाद में pamphlets शाया होने लगे। Many books were written on history, philosophy, politics, etc. बहुत सारी किताबें हिस्ट्री पर, फिलोसफी पर और पॉलिटिक्स पर लिखी जाने लगी। एरोपेजिटिका इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क ऑफ 17th सेंचुरी प्रोस, और एरोपेजिटिका इनमें से एक ज़बरदस्त काम है जॉन मिल्टन का। और ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय अ ग्रुप ऑफ 47 स्कॉलर्स, 47 स्कॉलर्स का एक ग्रुप था जिसने बाइबल को ट्रांसलेट किया। So in prose there was a great significant, there was a significant, you can say kind of work in prose. Prose के लिहाज से काफ़ी अच्छा दौर रहा। ये जो बाइबल ट्रांसलेट किया था, दिस वाज द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल and it was published in 1611. Then you will find poetry. Kindly mic को अपना म्यूट कर दीजिएगा। In poetry you will find poetry lacks the exalted poetic fervor of the Elizabethan age. जो एक fervor था, एक passion था Elizabethan age का, वो इसमें नहीं मिलेगी आपको। Poets also delighted in mysticism and religious themes. They had religious themes and mysticism. इन चीज़ों में वो काफ़ी poets interest लेने लगे। Good lyrics were written and Milton stands by himself. Milton की अपनी अलग एक शख्सियत थी and he was himself. It is said that he was the representative of this age. कहा जाता है it is also called the Miltonic period. Milton harmonized his religious passion with the culture of the Renaissance. Milton ने क्या किया, जो अपना एक religious passion था उसका, वो उसने रेनेसा के कल्चर के साथ हार्मोनाइज किया, इन दोनों को एक साथ किया, ये इसने एक एफर्ट्स की। So Milton actually, that is why it is said that this is also the age of Milton. Milton does not really belong to this age, but he stands all by himself. और ये भी कहा जाता है it will be correct to call him a late Elizabethan. Milton was a Puritan but he did not have the Puritans' fanaticism and narrow-mindedness. लेकिन ये उनकी तरह narrow-mindedness नहीं था. He did not have pleasure or sense of beauty. He loved music and beauty and his passion for classical languages and literature. Is that clear to all of you? माइक अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज, शबाना खान। यस, तो ये एज के बारे में मैंने कुछ आपको बताया।
So if you have any question regarding the age, you can ask me. Yes, hurry up, hurry up. Time is very short. If you talk about Milton as a poet, just I'm giving you a very brief view. If you talk about Milton as a poet, so we can find Milton's poetry is highly musical. And that is why Coleridge says that Milton is a musical poet. The effect of Milton's poetry is produced not by what it expresses, but by what it suggests. Milton's poetry is full of allusions to the Bible and the classics. So his poetry is highly musical, and we are going to study, inshallah, his poem Paradise Lost, Book 1. Paradise Lost 1. Yeah, anything that you have that you want to ask? Yes, please. We have only 5 minutes, not more than this, because today is Friday and I would like to end your class after 5 minutes. Sir, what is arapathetical work? Aeropagitica is a prose work. It is a pamphlet written for the freedom of printing books without any license or without any licenseship. As I told you that there was a law ordinance passed in 1643 which says that all the books should be printed after licensing. So this ordinance enraged Milton. It made Milton very angry, and Milton then wrote this essay. He was himself the member of the parliament. He was himself a very influential person. तो उसने सोचा कि हम जिसकी बात करते थे, हम लोग तो आज़ादी की बात करते थे, और आज हम खुद ही लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और हमने बुक्स पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी बुक जो है बगैर लाइसेंस के नाम पब्लिश हो, बुक के ऊपर लाइसेंस। तो उसने उसके खिलाफ जो है एक ऐसे लिखा और एक पम्फलेट लिखा, दैट इज कॉल्ड एरियोपेजिटिका, एंड इट इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क ऑफ मिल्टन, which is, and it is a classical, it is considered to be a classical oration in English language. Yes. Poetry lacks the exalted poetic fervor of the Elizabethan. In Elizabethan era, people were free to write on any topic, but this is the era in which you will find poets took pleasure in mysticism and religious themes. Mysticism के बारे में लिखा करते थे ज़्यादातर, और religious themes के बारे में. And Milton himself wrote about religious theme, the fall of man. Paradise Lost one का जो theme है वो क्या है? Fall of man. It's about man. It's about Adam. इसमें आपको Adam set इसमें God, Adam, Satan, ये आपको कैरेक्टर मिलेंगे. It's about fall of man.
Okay, let me take your attendance, please. Sir, I have a question. Just wait. Let me take your attendance, otherwise your name will be missed. Name आपका मिस हो जाएगा ना. Okay, now ask me your question, please. Sir, Quickly, time is very short. Today is as Friday. I have texted Yeah. in the group, so you said that you can ask tomorrow by in class. Yeah, I told yesterday, yes. सर What is your question? वो मैं यही कहना चाह रहा था ना कि हमने फेरी कोइन का जो है सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा है टेक्स्ट, ठीक है, तो मुझे यही पूछना था कि हम पूरा पढ़ेंगे या ये जो पढ़ा है वही हो. देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि इस लेवल पे आपको हर चीज़ लाइन पे लाइन नहीं पढ़ाई जाएगी. आप नॉवेल पढ़ते तो कोई टीचर आपको नॉवेल पूरा पढ़ाता थोड़ी है. क्या करते हैं, दे डिस्कस इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. पढ़ना आप नहीं होता. पोएम का ये होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया. आपको एक ट्रैक पे भी लेकर आया कि ये तरीक़ाकार है, इस तरह से आपने पढ़ना है. ये इसका मिसाल दो, मैंने आपको फेरी क्वीन का बताया कि एलिगोरिकल पोएम एलिगोरी होती क्या है. फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, एज के बारे में बताया, राइटर के अपने पर्सपेक्टिव के बारे में बताया. अब मैंने आपको एक ट्रैक पर खड़ा कर दिया. फिर उसके बाद 200-250 लाइन्स मैंने पढ़ा दी आप लोगों को. अब बाकी जो है वो आप लोगों को खुद देखना होगा, ठीक है. क्योंकि अगर हम आप हर इस लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे फैसिलिटेट किया जाता है, नहीं टीच किया जाता है. वी आर फैसिलिटेटर, वी फैसिलिटेट यू. रिसर्च वर्क में क्या होता है कि रिसर्चर जो आपको फैसिलिटेट करता है, बाकी आपने खुद खोजना होता है, ठीक है. तो ये इसमें होता है. अब जैसे ये आपके पास पैराडाइज लॉस्ट वन है, ये इतनी लंबी पोएम है कि अगर ये सारी पढ़ाने लगे तो 3 महीने इसमें लग जाएंगे. और मेरे पास जो कोर्स में वो 7-8 पोइट्स हैं. तो ये आपको एक तरीका बताया जाता है स्टडी करने का, और आपको कुछ एग्जांपल्स दी जाती हैं. उसके बाद आपने उसको खुद करना होता है. जो आपको मैंने करवाया था वो तो इसलिए करवाया था कि इनमें से आपसे मैं लाइन्स, आई कैन गिव यू लाइन्स आउट ऑफ देम एंड यू शुड रिमेंबर देम, ठीक है. क्योंकि लाइन से प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज आप खुद अगर पढ़ेंगे तो इट्स बेटर फॉर यू. अब आपके पास असाइनमेंट है और प्रेजेंटेशन है, जो इन तीनों में से लिए जा सकता है. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई विल रिवील योर असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन बोथ. इज दैट क्लियर? थैंक यू सर. तो इस लेवल पे ना आप अपना लेवल समझे. यू आर द स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट. आपका लेवल जो है रिसर्च लेवल वाला स्टूडेंट का है. तो आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, और आपने उस फैसिलिटी से मज़ीद अपने अपने आप को आगे लेके चलना होगा. अब मिसाल ले लें, नॉवेल्स आप पढ़ते हैं तो टीचर आपको रीडिंग थोड़ी करवाता है. वो सिर्फ टेक्निकल आस्पेक्ट को डिस्कस करता है और कुछ अहम चीज़ों को डिस्कस करता है. बाकी पढ़ना आप नहीं होता है नॉवेल को. सिर्फ पोइम्स को भी आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, और बाकी चीज़ आपको तरीका बताया जाएगा, उसका स्टाइल बताया जाएगा, उसके बारे में जो चीज़ें होती हैं, important things are taught to you, and then the remaining things you have to do yourself. Similarly, other textual text में भी आपके साथ ऐसे ही होगा. Any other question? That's all. Yes. अब जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे तो इसमें चंद चीज़ें जो आपको नोट करने की. फर्स्ट थिंग इज दैट मिल्टन्स पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉज अ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड. सेकेंडली, हिज थीम्स आर रिलीजियस. थीम इज़ रिलीजियस, द फॉल ऑफ मैन. इसका जो थीम है वो है द फॉल ऑफ मैन. इंसान किस तरह से अपने रुतबे जन्नत से, मतलब ये कि उसको निकाला जाता है. फिर उसके बाद जो है यू विल सी हियर इट इज़ एन एपिक. एपिक पोएट्री क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको बता दूंगा मैं. व्हाट इज़ कॉल्ड एपिक पोएट्री, ठीक है. एंड ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है. व्हाट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स, आई विल टेल यू अबाउट दिस. एंड देन इंशाल्लाह विल डू सम टेक्चुअल स्टडी. 2-3 क्लासेस में करेंगे. एंड देन यू हैव टू डू योरसेल्फ. तो जितना आप करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, एंड द मोर यू गेट गुड मार्क्स. दैट्स ऑल. थैंक यू. नाउ इंशाल्लाह we have missed many classes of teaching of literature. तो उसका मैं हो सकता है आपको किसी ऑल्टरनेट डेज में भी आपसे ले लूँ. रात तरावियों के बाद हो सकता है, आज नहीं कल नहीं, 1-2 दिन, या हो सकता है मंडे की रात, ये जो भी मैं आपको बता दूंगा पहले. तो तरावियों के बाद यानी 10 बजे के बाद हो सकता है एक आध हम क्लास ले लें, ठीक है. तो माह रमज़ान में थोड़ा सा हमें मैनेज करना होगा. एंड आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू इट्स स्केड्यूल. इज दैट क्लियर?
Thank you very much. Thank you so Thank you, much, sir. sir.